No laziness. No laziness. Let us get educated. Let us get educated. The doors of school The doors of school are now open are now open and not gated. and not gated. Stop. My dear. Marvelous. Truly inspiring. I apologize for the interruption. Allow me to introduce myself. I'm Ribs Jones, the collector of Pune, and this is my wife, Jennifer. How do you do? I am Savitri. This is Fatima. It's a pleasure. You know, our government has been trying to bring education to the girls of this country for quite some time. Unsuccessfully. Perhaps we know our people better. Miraculous. It's not a miracle, madam. We all have the ability. What makes the difference is how we choose to use it. Indeed. This is our vision, and we are just following it. The vision of your husband? You seem to know a lot about us. Of course. We've been keeping an eye on you. Huh? What's your name? My name is Mukta Sarve. What are you writing? मुक्ता क्या लिख रही हो बताओ? She has written an essay about her personal experience. I can translate it for you. No. Perhaps she can read it for us, in her own language. पढ़ के सुनाओ मुक्ता. वेद अगर ब्राह्मणों के लिए है तो उन्हें उनको धर्म मानकर उनका पालन करना चाहिए. इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए कोई भी धर्म पुस्तक नहीं है. तो भगवान आपके तरफ से आया हुआ ये कौन सा धर्म है जो हमारे लिए है? Shabash. थैंक यू सर. Please tell your husband to come meet me. I may be of some assistance to him. Thank you. अंग्रेजी भाषा का प्रचार सीधे संस्कृत पे वार है. हमें संस्कृत को बचाना होगा. अगले 1 घंटे तक तो मेरी परछाई नहीं हिलने वाली. मैं भी कहीं नहीं जा रहा. भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर. नरक में चलेगा. स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना. तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे. तुम भगवान को ललकार रहे हो? नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म को. ब्राह्मण को सिखाएगा धर्म क्या होता है? आस्था का विषय है धर्म. तर्क वितर्क का नहीं. जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है. एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा. उसने तर्क किया और उसी की वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की. ग्रेविटी. हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूं कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है.
आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। पंचायत में चेतावनी देने के बाद भी उसने स्कूल खोल दिया। पंडित जी, समय आ गया है कि हम संपूर्ण महाराष्ट्र से ब्राह्मणों को बुलाएं। उसके बाद ज्योतिबा और सावित्रीबाई से निपटेंगे। विनायक जी, ज्योतिबा तो केवल दिया जला रहा है, उसमें तेल तो अंग्रेजी सरकार भर रही है। Jyotiba Phule, the man with a mission. Thank you. I believe you called for me. Indeed, I did. Please, sit. Thank you. Ah, Jennifer. Thank you, my dear. Will you have tea? No, thank you, sir. मुझे सिड रिव्स ने बताया कि लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरक्की में हर धर्म, हर जात और हर वर्ण की भागीदारी हो, यानी सभी को सरकारी नौकरी का अवसर मिले। लेकिन उसके लिए सभी को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होना जरूरी है। और मुश्किल यह है कि आधुनिक शिक्षा केवल ऊंची जाति के लोगों तक ही सीमित है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई शिक्षा नीति तैयार की है, लेकिन उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के सर्वे से पता चला कि भारत में छोटी जाति के लोग और महिलाएं पढ़ना ही नहीं चाहते। Current state of affairs has left the Governor General rather disappointed. However, I believe you can change that. Sugar, dear. I have seen your school, Jyotiba. Can you make more? I am in a process of opening 4 more schools in Pune. This movie present by Sky Set X. That simply won't do. 5 schools won't make any difference at all. 25. 25 schools would be a good start. I'm glad you think like this. And I believe in what you're suggesting. So please help me get more funds from your office and I'll open 24 new schools. Right. Think over it. Pune will be a first city to have such a model. And I'm sure you will get a big pat on your back from Lord Dalhousie. No doubt, Jyotiba. However, I'm afraid I must disappoint you. Tax revenues of late have been low. Even the office you see before you is running in losses. No, I'm afraid our funding such a project, however much I would love to make it so, would be simply impossible. रिव्स ने बिना किसी सरकारी मदद के ज्योतिबा फुले को 24 स्कूल और खोलने का सुझाव दिया। उस सुझाव में ज्योतिबा फुले को एक अवसर दिखा। I understand. Apart from the funding, there are a couple of more things you could help me with. एजुकेशन उनकी प्राथमिकता है तो स्वयं पैसे क्यों नहीं लगा रहे? तुमसे क्यों कह रहे हैं? ये प्राथमिकता लॉर्ड डेलहाउसी की है और रिव्स के पास ये मौका है कि वो डेलहाउसी की नजरों में ऊपर उठ सके और हमारे पास ये मौका है कि हम पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं। तो अब तुम बची 20 एकड़ जमीन भी बेच दोगे? ये कोई मैं आवेश में आकर नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता था वो लोग पैसे नहीं लगाएंगे। मुझे तो रिव्स से कुछ और ही चाहिए था। हमारी कंपनी का नाम होगा पुणे कमर्शियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। हम रेलवे और टनल के कंस्ट्रक्शन में लेबर सप्लाई का काम करेंगे। ये देखो, गुप्ता सालवे के ऐसे का अंग्रेजी अनुवाद है ये। अगले हफ्ते के पुणे ऑब्जर्वर में छपेगा ये। साथ ही हमारे स्कूल के बारे में भी छपेगा। ये तो हमें और स्कूल्स खोलने में मदद करेगा। लगान 6% से 12% कर दी गई है। लक्ष्मी जब घर से जाती है मेरे लिए उससे बुरा समाचार नहीं होता। लक्ष्मी नाराज है कि हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। पंडित जी, पेट की लड़ाई के आगे धर्म नहीं,
ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष अंग्रेजों से 4,000 रुपए मिलते थे। ज्योतिबा ने उसके विरुद्ध कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। यह गाज हम पे भी गिरेगी। आज एक लड़का आया था, नारायण लोखंडे, 8 साल का है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहता है। अच्छा है, अब से हमारे स्कूल्स में लड़की भी होंगे। किती माणसं आहेत आपल्याकडे? 200? नहीं होगा का 200 अर्जुन लगते हैं। ठीक है। टनल का काम बड़ा है। आप लोग चलिए, बाद में बात करते हैं। ये फिल्म cinewood.net द्वारा प्रस्तुत की गई है। कौन पहले थकता है, वो या हम? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख, उस्मान शेख, विष्णु पंत, तात्या भिड़े और लहूजी की मदद से 3 साल में पुणे और उसके आसपास में 19 स्कूल्स और खोल दिए। इसी बीच मुक्ता साल्वे का निबंध अखबारों में प्रकाशित हुआ और चर्चा का विषय रहा। On behalf of the British government, we take pride in this. ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सम्मान में विश्राम बाग स्कूल में एक आयोजन रखा। Savitribai Phule's work is reflected in the essay that one of her students, Mukta Salve, has written on the shocking discrimination in Indian society. It is so significant that I feel it could be the starting point for scheduled class literature. You must continue to write. मेजर कैंडी ने उनके प्रयासों की खूब सराहना की और मुक्ता साल्वे के निबंध को दलित साहित्य की शुरुआत बताया। The community untouchables. As a representative of the government, I'm pleased to honour the Phule couple with this lovely shawl. I may have opened the schools, but she ran them along with her friends like Fatima. Today I am grateful to them and the British government for their support. Today we have opened our 20th school. पुणे के सरकारी स्कूल्स में 300 लड़के हैं। उसके मुकाबले हमारे स्कूल्स में गवर्नर
Hair Candy, I'm only doing my job of educating my sisters. The cow dung and the stones that they pelt on me do not frighten me. In fact, it encourages me. It's like they are showering petals at me. I invite Mrs. Candy to distribute cash prizes to deserving children. ये नहीं चाहिए। विद्यालय में एक पुस्तकालय हो सकता है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर किताबें नहीं। 19 जुलाई 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर चार्ल्स वुड की नई शिक्षा नीति लागू की, जिसने अंग्रेजी शिक्षा के द्वार सभी भारतीयों के लिए खोल दिए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दलितों पर हुई हिंसक घटनाओं की शिकायत दर्ज कराने रिब्स के पास आए थे। You started a school. They took up arms against you. You opened more. They threw dung at you. Your every move agitates them. Are we supposed to be frightened? No. But understand this. By offering education to the lower castes, you're challenging the religion of the upper castes. You're saying there is no solution to this problem? रिब्स ने मौके का फायदा उठाकर हिंदू धर्म की आलोचना की और उनके आगे क्रिश्चियन धर्म अपनाने का प्रस्ताव रखा। There is no shame in turning your back on a system that does nothing but work against you. Christianity welcomes all with open arms and an open heart. Rich or poor, high or low, Christianity sees all as equal. You are a practical man, Jyotiba. I'm sure you will see this for what it is. An opportunity to lead your people to equality. I need some time to think over it. Of course. But, as you know, the Thane Railway Bridge construction is about to begin. The company needs plenty of labor, and it needs someone to lead them. I can strongly recommend your name. That's really kind of you. We will do a good job there. सेठ जी, आपका सबसे ज्यादा सम्मान आपके स्वाभिमान के खातिर करती हूँ, जिसके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन आज रिब्स के सामने अरे वो आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बोला ले रहे हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये अंग्रेज हमारा भला करने नहीं आए, तिजारत के बहाने लूटने आए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर रियासतों पर कब्जा किया, फिर लगान बढ़ा दी। इसीलिए तो ब्राह्मण एकजुट होकर उनका विरोध कर रहे हैं। अंग्रेज चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ जाए ताकि उनकी संख्या बढ़े। अब और किसी का भरोसा नहीं करेंगे, कुआ अपने आंगन में ही बनाएंगे। इंसान बिना धर्म और जात का। तो सभी के सुविधा के लिए ज्योतिबा भाऊ फुले और सावित्रीबाई फुले के घर के आंगन में ऐसा कुआं प्रारंभ होने जा रहा है जो प्यार देखता है, धर्म और जात नहीं। सावित्री ज्योति कहाँ
दिल प्यासों का रोकी दरिया दिल प्यासों का रोकी दरिया दिल प्यासों का पुण्य नगरी में हुआ अजूबा पुण्य नगरी में हुआ अजूबा प्यास बुझाने आए ज्योतिबा प्यास बुझाने आए ज्योतिबा हुआ खोला है अपने घर का हुआ खोला है अपने घर का मिलाया पानी सब मेरा का मिलाया पानी सब मेरा का मसीहा है हम अछूतों का मसीहा है हम अछूतों का मसीहा है हम अछूतों का बाबा ये वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। कल तुमको सुबह मिलने के लिए बुलाया है। बाबा अचानक स्वास्थ्य कैसे बिगड़ा? वो सरपंच जी कल घर आए थे। अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें एक होना होगा। वो कल तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बताने के लिए हमें बुलाया था? तुम बैठो। बेटा, संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। आपकी चिता को अग्नि भी संतान ही देता है। बाप दादा के नाम को आगे बढ़ाता है, नहीं तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें दूसरी शादी की अनुमति देता हूं। बाबा, संतान न होने का कारण मैं भी हो सकता हूं, पर अगर ऐसा है तो क्या आप सावित्री का भी दूसरा विवाह करवाएंगे? क्योंकि संतान न होने का सबसे ज्यादा दुख एक स्त्री को ही होता है। ये तो बाबा, कल सरपंच से मिलने चला जाऊंगा। बाबा, समाज का हर शोषित हमारा संतान होगा। आप चिंता मत करिए, हमारे
हमारी चिता को आग देने के लिए सैकड़ों बच्चे होंगे। ये मतभेद और गहरा ना हो, इसलिए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा विरोध किसी भी ब्राह्मण से व्यक्तिगत नहीं है। हमारा विरोध उस व्यवस्था से है जिसने अछूत बनाकर हमारा समानता का अधिकार छीन लिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जिसकी जनसंख्या करोड़ों में है, लेकिन फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी एकता को खंडित किया है। 1857 की लड़ाई हम निश्चित रूप से हार गए, लेकिन इस महासंग्राम ने पूरे देश को जागरूक किया है। युवाओं में आक्रोश है। लहूजी जवानों को तैयार कर रहे हैं। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, अपने जवानों को एकत्र करो और लहूजी से प्रशिक्षण लो। आप जिसे संग्राम कह रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने दुनिया भर में उसे आतंकवाद का नाम दिया है। और अगर अंग्रेजों से जीतना है तो हथियार के बल पे नहीं, विचारों के बल पे ही शक्य है। ये तभी हो सकेगा जब लोग पढ़ेंगे। हम यहाँ देशभक्ति की बात कर रहे हैं। पहले अंग्रेज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम सबका धर्मांतरण करेंगे। आज अंग्रेज मुट्ठी भर है, कल हम हिंदू होंगे। तो फिर आप देशभक्ति का अर्थ ही नहीं समझते। आप हमें हिंदू भी कहते हो और अछूत भी। आप नहीं बदलेंगे और अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे। और अगर अंग्रेज देश छोड़ के चले भी गए तो आप उनकी जगह लोगे। आपको भी तो वही चाहिए ना जो उनको चाहिए, सत्ता। कर दीजिए हमें इस गुलामी से आजाद, फिर एक साथ लड़ेंगे अंग्रेजों से। फातिमा, समय आ गया है कि हमारे स्कूल में एक नया तकनीकी विभाग शुरू हो, जहाँ बच्चे कुछ नया व्यापार या कला सीखें जो उनके भविष्य में भी काम आए। उसके लिए टीचर्स भी तो चाहिए होंगे जो तकनीकी ज्ञान जानते हो। और औरतों का शिक्षण भी तो जरूरी है ना। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अपना ये स्कूल बंद कर और ज्योतिबा को समझा हमारे प्रथाओं में बाधा न डाले। नहीं बंद करेंगे। क्या कर लोगे? ज्योतिबा का वध करूंगा और उसकी चिता के सामने तेरे बाल कटवाऊंगा। फिर तुम दोनों के साथ वही होगा जो होता आ रहा है। आपको देख के बचपन की एक घटना याद आ गई। एक सांप एक गौरिया के अंडे खाने की चेष्टा कर रहा था। गौरिया डर के मारे यहाँ वहां भाग रही थी। सही याद किया तूने, वही घटना आज फिर होगी। आपने तो पूरी कहानी सुनी नहीं। मुझे हमेशा से पता था जहरीले सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, तो पूंछ पकड़ी मैंने और झटका दिया। लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी सांप खुनखुना रहा था। पर मैं गांव में पली बड़ी, कुल्हाड़ी डंडा इन्हीं सब से तो खेलती थी। तो छोड़ा मैंने कोई गई उसके पीछे। चलो फातिमा। काशीबाई है। 2 महीने पहले इनके पति का देहांत हुआ है। ससुराल में ही रह रही थी और वहीं किसी संबंधी ने जब पता चला कि मां बनने वाली है तो लोगों के डर से आत्महत्या करने जा रही थी। This movie present by Sky Set X. मैं सावित्री। जो हुआ बहुत बुरा हुआ।
लेकिन उसकी क्या गलती? इसका जीवन तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। आज से ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। काशीबाई और हेमाबाई को तो हम बचा सके, लेकिन ऐसी और कितनी औरतें होंगी? नंदाबाई याद है? आज भी काला पानी की सजा भुगत रही है अपने बच्चे को नदी में फेंकने के लिए। सेठ जी, ऐसी औरतों के लिए एक आश्रम खोले। आप इतना क्या सोच रहे हो? आश्रम तो खोल सकते हैं, पर उसे संभालेगा कौन? मैं व्यापार संभाल रहा हूं और तुम स्कूल्स। क्यों? फातिमा, उस्मान भाई, तात्या जी, लहू जी, विष्णुपंत और मैं, हम सब तो हैं। हम विधवाओं को आश्रय देंगे, बच्चे के होने तक पूरा ध्यान देंगे। उसके बाद माँ चाहे तो अपने संतान के साथ आश्रम में रह सकती है। मगर समाज में इन बच्चों का क्या दर्जा होगा? उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि वो खुद अपना दर्जा कायम कर ले। खेतों में आई बारिश, खेतों में आई बारिश, निर्मल हो गई प्रकृति, निर्मल हो गई प्रकृति, फल फूल अनाज की पोषण बारिश। राम राम ज्योति को। बोलो जगदाले। पंडित जी ने भेजा है। क्यों? आपके घर में 2 विधवाएं हैं। खबर है कि उन्होंने बाल बढ़ा लिए, उसे काटना होगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है ना इनके आत्मसम्मान को नष्ट करते हुए? ये तो इनके भाग्य में है। विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। मैं नहीं तो पंडित जी किसी और को भेज देंगे। तुम लोगों में से ही किसी को भेजेंगे ना? पंडित जी खुद तो नहीं आएंगे। जगदाले के कहने पे आप सभी यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। एक विधवा के बाल काटने से कितना कमा लेते हो? 1 कौड़ी। 1 कौड़ी। सोचे, अगर यही आपकी बहन बेटी होती तो भी इनका सर मुंडवाते। और ये कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक प्रथा है जिसे आप ही खत्म कर सकते हैं। इतनी पुरानी प्रथा समाप्त कैसे होगी? तो जिन्होंने ये प्रथा शुरू की है उन्हीं से जाके कह दो कि अपनी ही घर की विधवाओं का मुंडन करें। विधवाओं का भाग्य बदल रहा है। अंग्रेज सरकार का नया कानून है कि विधवाएं चाहे तो पुनर्विवाह भी कर सकती है। चलो
इसकी कीमत जानती हो? 183 रुपए। पूछा था मैंने। कोई है क्या वहाँ? हाँ, आपको सुन लिया होगा। आपका शॉल चुराने के लिए आ रहा है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये खून खराबा नहीं देख सकते। मैं जानता हूं तुम लोग हत्यारे नहीं हो। अगर मुझे मारने के तुमको पैसे मिलते हैं तो तुम मेरा रक्त बहा सकते हो। हम तुम्हारे बच्चों के हाथ में इसलिए कलम पकड़ाना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई उन्हें पैसे देके छुरा ना पकड़ा सके। नाम क्या है? दुंडी। रोडे। पुणे में देखा नहीं कभी तुम्हें। सातारा से आए हैं। सातारा? मंगल नाम का आदमी हमें 100 रुपए दिए। हमें मारने के लिए? चलो, आज एक ऐतिहासिक घटना हो गई। ब्राह्मणों ने पहली बार हमारे ऊपर खर्चा किया है। हमें नहीं बताया गया था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। मेरा तो जी करता है इसी कुल्हाड़ी से उनकी जान ले लूं। उनको मारना है तो उनके आदेश का पालन करना बंद करो, अपने आप मिट जाएंगे। और भाऊ, तुम मन को शांत रखो।